Welcome to Hornbill TV. Congress leader Rahul Gandhi alleged that Prime Minister Narendra Modi is influenced by former US President Donald Trump, criticizing his approach to foreign relations and drawing comparisons to domestic political dynamics. Issues reflect the failure of the left front. ഇതെല്ലാം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭരണ പരാജയത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. In Delhi, their partner Narendra Modi is playing havoc. ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഇവിടെ പങ്കാളിയായ നരേന്ദ്രമോദി ഇതേ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. He is fully controlled by Donald Trump. അദ്ദേഹം പരിപൂർണമായി ഇന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. If Donald Trump says jump, Narendra Modi jumps up. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചാടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നുള്ളത്. If he says lie down, Narendra Modi lies down. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നരേന്ദ്രമോദിയോട് കിടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കിടക്കും. And if he says go to Israel, Narendra Modi flies to Israel. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിലേക്ക് പറക്കും. And the best part is, the most humiliating part, the most insulting part is that Narendra Modi calls Donald Trump sir. അതിന്റെ ഏറ്റവും അപഹാസ്യമായ ഏറ്റവും അധികം നമ്മളെല്ലാം വേദനിപ്പിക്കുന്ന അതിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറയുന്നു നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് സാർ എന്നാണ്. He thinks he's back in the British times. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. He has forgotten that India is an independent nation. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണെന്ന് മറന്നിരിക്കുന്നു. And our Prime Minister should never call anybody sir. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരിക്കലും ഒരാളെയും സർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പാടില്ല. The Prime Minister is not supposed to do the job of Donald Trump. He's supposed to do the job of the people of Kerala and the people of India. നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് പറയുന്ന ജോലിയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. The same way Donald Trump controls Narendra Modi controls the Chief Minister of Kerala. എങ്ങനെയാണോ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നരേന്ദ്രമോദിയെ BRS MLA Party Kaushik Reddy appeared before the CID in Hyderabad after being summoned in connection with a case related to alleged unlawful assembly and obstruction of police during the Samaka Saralamma Jatra in Karimnagar.
Haryana Chief Minister Nayaab Singh Saini, while chairing the 7th FMDA meeting in Surajkund, expressed dissatisfaction over delays in completing projects and had officials accountable for timely execution. He approved Rs 988 crore budget for infrastructure, including water supply, roads, sewerage, drainage and green development, assuring no shortage of funds for Faridabad's growth. की कार्यशैली पर नाराजगी भी व्यक्त की है जो पुरानी बैठक में ATR की जो रिपोर्ट है समीक्षा बैठक नहीं, देखिए, हमने ये स्पष्ट रूप से कहा है क्योंकि ये सरकार गति से काम करने वाली सरकार है। अब हमने अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमारी हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, मेरी भी जिम्मेवारी है। मेरे से भी कोई पूछता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ है, मेरे से पब्लिक पूछने वाली है, पब्लिक मेरे को पूछती है, मैंने पब्लिक को जवाब देना होता है जब वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने अधिकारियों को ये कहा है कि आप अपनी ड्यूटी के अंदर कोताही मत बरतिए। हाँ, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई दबाव है, वो बताइए ना, उस दबाव को भी आपके दूर करेंगे, आपकी समस्या को भी दूर करेंगे। परंतु हमने गति से और स्मूथली काम करना है, हमने टाइम में काम करना है। ये नहीं है कि हमने उसका टेंडर लगा दिया, 5-5 साल लोग भुगत रहे हैं। हमने उनको भी आज बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा की है कि इतने दिन इसका टेंडर लगे हुए हुआ, क्या कारण है, इसका बजट बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, इसकी जिम्मेवारी किसकी थी, उसको भी हमने सुनिश्चित किया है ताकि आने वाले समय के अंदर हम टाइमबद्ध तरीके से, हमने जो टाइम तय किया है उस टाइम के अंदर हम लोगों को वो सुविधा पहुंचा सके। अगर उससे बाहर कोई जाता है तो वो उसकी जिम्मेवारी है, वो उसको बताना पड़ेगा, लिखित रूप में बताना पड़ेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है। क्योंकि जब हम उसको कोई बजट की दिक्कत नहीं आने दे रहे, जब बजट की दिक्कत नहीं आ रही तो काम की क्यों दिक्कत आए। लोगों को सुविधाएं चाहिए। मैंने कहा है कि मेरे को भी पूछने वाला है कोई, मुझे भी जवाब देना होता है और ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। हमारे अधिकारी हैं, हमारे चाहे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनको ये टेंडर मिलता है, हम सब मिल करके इसको एक समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से हम कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्रवाई भी की गई है, जो अधिकारियों के ऊपर ये जानकारी मिली है। नहीं, जिसने कोताही, मैंने कहा है जिसने कोताही बरती है उसके खिलाफ, देखिए, हमें जब ये नजर आता है कि यहाँ पर कोताही बरती गई, अगर 5 साल से कोई व्यक्ति पब्लिक के उससे जूझ रहे हैं तो बताना पड़ेगा उसको। नहीं बता पा रहा है तो कार्रवाई है, हमने कहा है। देखिए, क्योंकि आज FMDA की बैठक में कई एजेंडों के ऊपर चर्चा की है, नए कार्य भी थे और नए के साथ साथ पिछले जो कार्य चल रहे हैं उनको भी रिव्यू किया गया है। बजट भी पास किया गया है, लगभग 988 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है और उसमें इस बजट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, चाहे सीवरेज की बात हो, सीवरेज के साथ साथ चाहे ड्रेनेज की सफाई की बात हो, ड्रेनेज के साथ साथ पेयजल की बात हो, सड़कों की बात हो और चाहे हमारी ग्रीन बेल्ट की बात हो, इन सब को लेकर के चर्चा की गई है। रेन्यूएबल से जो पानी आता है उसको लेकर के चर्चा की गई है कि पीने के पानी की कोई दिक्कत समस्या ना हो, पहले ही हम उस पूर्ति को पूरा कर लें। स्वच्छता को लेकर के उसके अंदर बात हुई है, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है और उनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अंदर सुधार किया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। और सीवरेज और जल प्रबंधन को लेकर के जो हमारे STP बनेंगे और उसके अंदर बहुत सारा पानी हम रीयूज भी उसके अंदर कर सके, उसको लेकर के भी 85 करोड़ रुपए की लागत से प्रतापगढ़ जो 90 MLD का है, मिर्जापुर में 70 MLD का है और बादशाहपुर के अंदर 45 MLD के 3 मौजूदा STP को आधुनिक तकनीक के साथ साथ अपग्रेड किया जाएगा।
Chief Minister Pushkar Singh Dhami highlighted the launch of the Doon Book Festival, calling it an important event for literature lovers, scholars and children, and encouraged families to attend and explore its wide range of books and learning opportunities. सर, दून बुक फेस्टिवल का आज आगाज हुआ है और 9 दिन तक ये चलने वाला है। क्या कुछ इसका उद्देश्य और क्या संदेश इस बार दे रहे हैं? देखिए, दून जो बुक फेस्टिवल यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, ये निश्चित रूप से हमारे पूरे उत्तराखंड के दून के आसपास के सभी साहित्य प्रेमियों के लिए, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों के लिए, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य कृतियों का संयोजन करने वाले और हमारे जो बच्चे हैं, भावी जो कर्णधार हैं, उनके लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी अच्छे इंस्टीट्यूशन वालों से भी, जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं, स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, और जो अभिभावकगण हैं, अपने बच्चों को जरूर इस फेस्टिवल में लेकर आएं, जिनसे उनको कई लाखों पुस्तकों का ये मेला है, उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और जब AI का जमाना है, आज डिजिटल युग है, ऐसे युग में भी हमारे बच्चों को, हमको, सबको पुस्तकें पढ़ने का भी जो है एक आदत होनी चाहिए। अपने रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं उनको शामिल करना चाहिए और उनका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। और ये हमारी जो भाषाई विरासत है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए। उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। मैं इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को भी धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का, हमारे NBT के जो अध्यक्ष हैं श्री मिलिंद भाई, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पूरे इन लोगों ने यहाँ पर ये फेस्टिवल आयोजित किया है। BJP leader Loket Chatterjee alleged lack of security in West Bengal, accused Chief Minister Mamata Banerjee of losing public trust and claimed she is trying to gain sympathy by raising concerns over elections and infiltration issues. पश्चिम बंगाल में कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कितना सारा सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में आए हुए हैं, लेकिन अगर खुद ममता बनर्जी बार बार मंच में उठ के ऐसा भाषण देंगे, ऐसा धमकी देंगे, महिला लोगों को ऐसा ही बोलेंगे कि आप लोग कोई किसी को देखो तो आप लोग घर से आप हाथा खुंती लेकर निकल जाओ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जनता के ऊपर भरोसा उसका चला गया है, जनता के ऊपर विश्वास उसका चला गया है। और इस टाइम में जो अनुप्रवेशकारी रोहिंग्या जो वोटर्स है, उसका नाम हटा दिया है इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए वो डरे हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस टाइम में चुनाव ना हो, इस टाइम में राष्ट्रपति शासन हो जाए, सिंपैथी से वोट लिया जाए। ये सब का चक्कर इनका कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जनता इस टाइम में अच्छे से वोट दे पाएंगे, एकदम शांति से वोट दे पाएंगे। जितने सारा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुआ है, जितने सारा छोटा छोटा जगह में भी सेंट्रल फोर्सेस वोट कराएंगे, उसमें आप निश्चिंत रहिए, ममता बनर्जी का कोई धमकी हुमकी इस टाइम में पश्चिम बंगाल का जनता नहीं सुनेंगे। BJP National President Nitin Nabin criticized opposition leaders as part-time during elections, asserting that BJP leaders work consistently for the people and expressing confidence in forming a government focused on developing Assam by 2047. लोगों को दिया गया मित्रों, ये परिवर्तन है जो आपकी सरकार को आपके आशीर्वाद से करने का मौका मिला है। मैं आजकल देख रहा हूं कुछ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन आए हैं, चुनाव आया है तो घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता और भाजपा का नेतृत्व करता 24/7 काम करता है, फुल टाइम पॉलिटिशियन है और हर समय अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कमिटेड होकर काम करता है। ये अंतर है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार का और पहले की सरकारों का। मित्रों, मैं आज यहाँ पर आपसे आग्रह करने आया हूँ, आप केवल आने वाले समय में एक नई, एक अच्छी सरकार नहीं चुनने जा रहे हैं, आप फिर से भाजपा की सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, केवल आप वैसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो आने वाले समय में 2047 में कैसे विकसित असम बने, उस दिशा में आगे बढ़ने वाली सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका एक एक वोट कीमती है और बड़ी संख्या में आज जो हमारी माता बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं, मेरे युवा साथी आए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 9 अप्रैल को एक एक घर से निकलकर एक एक मतदान का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक मत नरेंद्र मोदी को ताकत देने वाला है, हेमंत विश्व शर्मा को ताकत देने वाला है, अपना मित्र विजय मलाकार को ताकत देने वाला है। मित्र, तो आइए
अपने असम को एक मजबूत असम, एक सशक्त असम, एक विरासत के साथ विकास युक्त असम बनाने का हम संकल्प लें। साथ ही साथ मित्रों, बराज वैली के इलाके में आया हूं। मुझे मालूम हुआ था पहले कितनी घटनाएं घटती थी माता बहनों के साथ। पहले किडनैपिंग से लेकर तरह तरह के अपराध के केंद्र बना हुआ था। पर आज आपकी सरकार है, किसी अपराधी में इतना हिम्मत नहीं कि असम की जनता को परेशान कर सके, क्योंकि उसका मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बैठा है, जो एक एक व्यक्ति के साथ मामा के रूप में जुड़ा है, भाई के रूप में जुड़ा है। और यही जुड़ाव भाजपा का परिवार का बोध दिखाता है। अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, असम के चाय के बगान में लोगों से, माता बहनों से मिले। जिस भाव से मिले, लगा कि कोई परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के बीच में आया है। और ये जो बहुरूपिया आते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये असम का गमछा कैसे सम्मान का प्रतीक होता है। उनके लिए तो केवल एक कपड़ा। यही अंतर है भाजपा के नेतृत्व में और उन बहुरूपियों के नेतृत्व में। मैं आज आपसे मां कामाख्या की शक्ति का स्मरण कराते हुए, ब्रह्मपुत्रा की ऊर्जा का संकल्प लेते हुए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, आइए अपने असम को झुकने नहीं देना है, अपने असम को रुकने नहीं देना है, अपने असम को आगे बढ़ाना है और विकास के पटल पर सबसे सफल राज्यों के श्रेणी में। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.